Hi friends, again I have brought a very interesting topic, the cut off marks for IAS exam, that is for civil services. यानी जानिए कितने अंकों में बनते हैं आईएएस, कितने अंकों में बनते हैं सिविल सेवक. So UPSC conducts the All Indian exam, which is known as the Civil Services exams, every year. And these exams are in three stages: the prelims, the mains, and the interviews. And one has to pass through all these three stages. So, dear friends, like this is the prelims exams. It is for one day. It has a general studies and a CSET paper, and prelims is only qualifying in nature. After that, there is a mains. This is of 5 days, and in mains there are 9 papers, and out of those 9 papers, the marks of 7 papers are added. 9 में से 7 विषयों के ही नंबर जोड़े जाते हैं. So following are the subject whose marks are added, like one essay paper 250 marks, 4 general studies paper of 250 marks each, and one optional paper, and it has 2 papers inside. So this is how there are 7 papers in mains, and the subtotal of mains is 1750, and mains is followed by interview, or say the personality test, and interview is of 275 marks, and the grand total of the civil services exam is 2025. So in the first stage, that is the prelims, there is a general studies 1 paper and the GS 2 paper. The marks of only general studies 1 are considered, and general studies 2, that is CSAT, the marks are now not counted, and one has to score at least 33% marks. यानी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है आईएएस में, आप देख रहे हैं जनरल स्टडीज़ और सीसैट होता है, तो सिर्फ जनरल स्टडीज़ के मार्क्स काउंट किए जाते हैं 200 मार्क्स. सीसैट का पेपर भी 200 मार्क्स का होता है, बट इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते. इसमें 33% मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं. And prelims is only qualifying in nature, and it has no as such bearing in totaling is concerned in the final merit list. ये जो prelims exam है, ये एक समझ लीजिए to keep the rascals out. It is an elimination test. एक छन्नी जैसे छानती है उस तरह का एग्ज़ाम है. इसके मार्क्स मेंस में और या काउंट नहीं किए जाते हैं. एंड द टोटल ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू इज टेकन. मेंस होता है 1750 मार्क्स का, इंटरव्यू होता है 275. इस तरह से ग्रैंड टोटल बनता है 2025 मार्क्स का. एंड दिस इज हाउ the UPSC every year declares that what is the cut off, and UPSC has also some guidelines, some rules related with it. Say if 2 candidates score equal aggregate marks in civil services exam, the commission resolves the tie by allotting higher rank to that candidate who secure more marks in compulsory paper and IAS interview put together. यानी पहली बात तो ये है कि यूपीएससी में सिलेक्शन जो होता है उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के एग्रीगेट मार्क्स देखे जाते हैं. और अगर मेंस और इंटरव्यू में मान लीजिए 2 कैंडिडेट के अगर बराबर नंबर हैं, टाई हो जाता है, तो फिर ये देखा जाता है कि कंपलसरी पेपर कौन कौन से हैं, लाइक ऐसे और जीएस के जो 4 पेपर हैं, तो कंपलसरी और आईएएस इंटरव्यू के मिला के किस पालक के ज़्यादा मार्क्स हैं, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको हायर रैंक दे देंगे. एंड देयर इज अनदर रूल कि इफ़ 2 कैंडिडेट्स स्कोर इक्वल मार्क्स ऑल्सो इन कंपलसरी पेपर, राइट, in UPSC personality test and mains together, then who will be senior in age will be allocated a higher rank. यानी ये भी स्थिति हो सकती है कि यूपीएससी में मेंस और इंटरव्यू में 2 ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका एग्रीगेट भी बराबर है
और उनके आप मेंस और इंटरव्यू की अगर बात करते हैं तो उनका एग्रीगेट भी बराबर है, तो ऐसे केस में जो सीनियर इन एज होगा उसको हायर रैंक दे दिया जाता है. Then case number 3, if the two candidates score equal marks in both compulsory paper as well as interview and their age is same, then the candidate who secured more marks in compulsory paper will be allocated a higher rank. यानी ऐसा भी केस हो सकता है कि दो उम्मीदवार हैं, उनके बराबर नंबर है कंपलसरी पेपर में भी, उनकी एज भी बराबर है. अब ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? तो जिसके कंपलसरी पेपर में ज़्यादा नंबर हैं उसको फिर हायर ग्रेड दिया जाता है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द कट ऑफ ऑफ IAS एग्ज़ाम 2019 विच इज़ डिक्लेयर्ड इन अगस्त 2020. तो जानिए कितने नंबर में आप सिविल सेवा में सिलेक्ट हो सकते हैं. तो पहले बात करते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम. सो इट्स कट ऑफ इन 2019 वाज 98, यानी 49% मार्क जिसके प्रीलिम्स में थे उसका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो गया था. और फिर आप देख रहे हैं जनरल स्टडीज़ जो जनरल कैटेगरी का जो मेंस का कट ऑफ जो है 751 था आउट ऑफ 50 मार्क्स, और जो फाइनल ग्रैंड टोटल इस बार गया 961 नंबर, 961 आउट ऑफ 2025. यानी जिसने 47% मार्क्स पा लिए उसका सिविल सेवा में उसका सिलेक्शन हो गया जनरल कैटेगरी में. सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि करीब 46-47% जो मार्क्स हैं उससे आप एक सिविल सेवक बन सकते हैं. और अगर कहीं आपने 54-55% मार्क्स प्राप्त कर लिए तो आप IAS में टॉप भी कर सकते हैं. एंड आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने एक नई कैटेगरी जोड़ी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, यानी जो जनरल कैटेगरी के जो प्रतिभावान बालक हैं, जो आय जिनकी कम है एक निश्चित आय से, उनको बोला जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस. तो इस बार जो सिलेक्शंस हो रहे हैं EWS में, देख रहे हैं जनरल का जो कट ऑफ 98 है और आप देख रहे हैं OBC का कट ऑफ 95 है, लेकिन आप देख रहे हैं EWS का कट ऑफ 90 है. यानी जो EWS है वो काफ़ी इस समय फ़ायदे में है, उनका कट ऑफ OBC से भी कम गया है प्रीलिम्स में. अगर हम सिविल सर्विसेज फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इन द फाइनल एग्ज़ाम ऑफ सिविल सर्विसेज द कट ऑफ द जनरल कैटेगरी इज़ 961, यानी लगभग 47% मार्क्स जिसको मिले हैं वो सिविल सर्विसेज में उसने उसका स्थान प्राप्त किया है जनरल कैटेगरी में. whereas in OBC this is 925 and in economically weaker section this is 909. तो हम देख रहे हैं कि जो EWS है वो काफ़ी कम नंबर लेके भी उनका सिलेक्शन हो रहा है, एंड दिस इज़ क्वाइट एनकरेजिंग फॉर द EWS sections. So dear friends, so this is an opportunity for you. Now you have come to know that to crack the civil services exam for general category 46-47% marks are needed, and to crack the IAS exam with first rank or second rank what all you need to score is 54-55% marks. So dear friends, now make a plan, target the civil services, come out of your comfortable zone and just aim it, try it, make an action plan and try to become a civil servant, and after becoming a civil servant try to change your country. So इस तरह से आज आपने जाना कि कितने अंकों के साथ आप सिविल सेवक बन सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.